Bismillahirrahmanirrahim. We are at the platform of Stars Academy, Allama Iqbal Town, Lahore. My dear students, you are welcome here. This is free content activity, and now we have to discuss today one of the most important area, that is known as sentence completion. My dear students, you will be given some of the MCQs along with 4 possible options, and it is up to you to select the best option for the completion of that particular statement. And that statement is to be completed by you vigorously and intelligently if you have sufficient vocabulary bank. You need vocabulary extensively. That's why you people are directed by us to plan how would you like to arrange a great number of vocabulary item at your own disposal. That's why you people have to prepare your synonyms and general vocabulary especially from the federal books and the textual books you people consult. Now let's start sentence completion. It is actually at 3 different levels. Sentence completion could be on these 3 dimensions, like logic based, logically you must be very strong, vocabulary based, and grammar based. You have to complete a sentence by having 3 dimensions at your own disposal. I mean, whenever you are given a statement to complete, you people have to think over these 3 dimensions, लॉजिकली, वोकेबलरी पॉइंट ऑफ व्यू से और ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको तीनों एंगल से देखना होगा कि किस तरह से वो सेंटेंस प्रॉपरली कंप्लीट किया जा सकता है। हम इस पर जस्ट एक जो है वो स्टेटमेंट जो है वो बनाते हैं और देखते हैं कि कैसे हम जो है वो इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, जस्ट लाइक एन MCQ। over indulgence physical stamina. My dear students, I have written here overindulgence blank physical stamina. Now 4 options are there. Debilitates, maintains, sustains, contains. Now look, alpha, beta, Charlie and delta. These are 4 options are here along with a statement, and the statement is about to reread by me. Overindulgence blank physical stamina. You have to complete this statement by picking up any one of the given 4 possible options. Look, the word over, you people have to logically think over the things at the same time, grammar point of view se bhi, vocabulary point of view se bhi. Indulgence, you know, is a word, dear student, indulgence is a word that
shows positivity. You are indulged in something. You make yourself busy. You are at a project. Indulgence is a good thing, but you know, excess of everything is bad. So overindulgence, the word over, I have deliberately colored it. Over, जो ही आपने ओवर ऐड किया इसमें इंटेलिजेंस में, तो इससे नेगेटिविटी जो है वो पैदा हुई. ओके, जैसे कॉन्फिडेंस इज अ वेरी गुड वर्ड, यू मस्ट हैव इट, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस विल ब्रिंग डिजास्टरस एलिमेंट्स एंड इम्पैक्ट्स फॉर यू. तो इसलिए ओवर इंटेलिजेंस नेगेटिव जो है कॉनोटेशन देता है. मैं इसके लिए यहाँ पर नेगेटिव कॉनोटेशन दे रहा हूँ. Look, negative. Over is a negative sense conveyed expression. Overindulgence debilitates mean, this is vocabulary item. Debilitates mean weaken करना, कम करना. Maintain level को maintain रखना. Sustain किसी चीज़ को कायम व दायम रखना. Contains किसी चीज़ को एक ख़ास specific पैक में रखना. तो कंटेन्स और सस्टेन्स और मेंटेन्स, ये तीनों जो है बड़े पॉजिटिव वर्ड्स हैं. डेबिलिटेट्स जो है वो नेगेटिव सेंस वर्ड है. यहाँ मैं इसके लिए नेगेटिव चार्ज जो है इसको करते हैं. डेबिलिटेट्स का सिंबल जो है मैंने यहाँ पे नेगेटिव मार्क कर दिया. यानी ओवर और डेबिलिटेट्स दोनों एक दूसरे के साथ में जो है वो कंपैटिबल हैं, क्योंकि जब आप किसी काम में ज़रूरत से ज़्यादा इंगेज होंगे तो आपकी एनर्जी जो है वो डेफिनेटली विद एवरी पासिंग मोमेंट जो है वो एनर्जी लेवल कम होगा, डाउन होगा, तो फिर आपको रीटेक या इनटेक की ज़रूरत होगी. इसलिए हम ओवर इंडल्जेंस डेबिलिटेट्स फिजिकल स्टेमिना को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से और वोकेबलरी पॉइंट ऑफ व्यू से और लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है यही ऑप्शन बेस्ट बनती है, अल्फा ऑप्शन बेस्ट बनती है. क्योंकि फिजिकल स्टेमिना इज़ जस्ट लाइक अ बार, और ये फिज़िकल स्टेमिना बार की तरह है. जूं जूं वक्त गुजरेगा तो आपका जो फिज़िकल स्टेमिना है वो डाउनवर्ड आएगा. आपने अगर उसको मेंटेन करना है या अच्छे लेवल पर लाना है तो फिर आपको कुछ इनटेक लेना होगी, कुछ अपने आप को री एनर्जाइज करना होगा. ठीक है, तो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन डेबिलिटेट्स बनती है लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से. हम इस एक बेस्ट ऑप्शन को यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं. ओके, दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस MCQ. नाउ मूव अहेड. सेंटेंस कंप्लीशन में कुछ पॉइंट्स को हम डिस्कस कर रहे हैं इस वक्त. कॉज एंड इफ़ेक्ट एक पॉइंट है. इसके ज़रिए से जानते हैं कि कैसे कोई एक सेंटेंस है तो उसके कोई दो पोर्शन हों, सेंटेंस के दो पार्ट्स हों, तो किसी में कॉज आएगी तो फिर उसका इफ़ेक्ट दूसरे पार्ट में हमें वादे तौर पर नज़र आएगा. तो हम देखते हैं इसके हवाले से कि कॉज एंड इफ़ेक्ट के हवाले से कैसे जो है दोनों पोर्शन के अंदर लिंक डेवलप किया जा सकता है. एग्जाम्पल इसकी शेयर करते हैं. हिज स्टोरी वॉज सो हार्ट रेंडिंग दैट वी ऑल started blank. We all started blank. Options are there. Mocking, laughing, avoiding, weeping. These are 4 options altogether, और इनमें से हम हर ऑप्शन को स्टडी करने से पहले सेपरेटली कॉज एंड इफ़ेक्ट का एरिया देखेंगे. हिज स्टोरी वॉज सो हार्ट ट्रेंडिंग. लुक, वॉज सो हार्ट ट्रेंडिंग. द वर्ड सो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और स्टोरी कैसी है? हार्ट ट्रेंडिंग है. स्टोरी हार्ट ट्रेंडिंग है, दिल दुखाने वाली है, परेशानी वाली है. हिज स्टोरी वॉज सो हार्ट ट्रेंडिंग. अब
दुखी स्टोरी है, बहुत अफसोस हो रहा है स्टोरी को सुनकर, तो इसका इफेक्ट जो है, क्योंकि ये काज है, कॉज क्या है, हार्ट रेंडेडनेस, और इफेक्ट इसका क्या आएगा, क्या किसी की दुखी स्टोरी को सुनकर कोई शख्स मॉकिंग करेगा? नो, नॉट एट ऑल। दैट्स वाई इस एक ऑप्शन को आप रिजेक्ट कर सकते हैं कि ये ऑप्शन ठीक नहीं है। फिर किसी की दुखी कहानी को सुनकर कोई शख्स को लाफिंग करेगा? नो, नॉट एट ऑल, बीटा ऑप्शन इज आल्सो रिजेक्टेड। क्या किसी की परेशानी को सुनकर कोई शख्स जो है वो अवॉइड करता है? हमेशा आमतौर पर जो है नेचर में तो किसी की मदद करना होता है, तो अवॉइडिंग भी, चार्ली ऑप्शन भी रॉन्ग होगी। यस, किसी की दुखी स्टोरी को सुनकर इंसान को दुख होता है, गम आता है, दुख महसूस करता है, वीपिंग होती है। सो बेस्ट ऑप्शन कुड बी डेल्टा। Delta is the best option. His story was so heart-rending that we all started weeping. This is actually the proper cycle of cause and effect. Okay. Now move ahead. Contrast signal words. Contrast signal words में dear students कुछ ऐसे words हैं जैसे although है, yet है, but एटसेट्रा, नेवरदलेस, बेशुमार वर्ड्स हैं। इन सब वर्ड्स में से कोई वर्ड जो है अगर किसी स्टेटमेंट में आता है तो हमें वहाँ पर कंट्रास्ट जो है फाइंड आउट करना होगा, यानी सेंटेंस के दोनों पार्ट्स में कंट्रास्ट नज़र आएगा वाज़ेह तौर पर अगर इनमें से कोई वर्ड उसमें आ जाता है। ठीक है, हम जो है इसके हवाले से ये कह सकते हैं, एक एमसीक्यू की मदद से स्टेटमेंट देखते हैं। शी इज वेरी टॉकी, शी इज वेरी टॉकी बट आफ्टर discharging her duty at hospital, she is blank. She is blank. Options are there. Satisfied, annoyed, happy, withdrawn, these are four options dear students: alpha, beta, Charlie and delta. These are four options. She is, कंट्रास्ट सिग्नल वर्ड्स की बात हो रही है, किसी स्टेटमेंट में इनमें से कोई वर्ड आ जाए तो कंट्रास्ट होगा ऑन ईदर साइड ऑफ द वर्ड। शी इज़ वेरी टॉकी, यहाँ पता चला कि बहुत टॉकी है, वेरी टॉकी, टॉकी से मुराद है कि बहुत ज़्यादा बातूनी है। शी इज़ वेरी टॉकी बट आफ्टर डिस्चार्जिंग हर ड्यूटी एट हॉस्पिटल शी इज़ ब्लैंक, यानी बहुत ज़्यादा बातूनी है लेकिन सारा दिन बहुत मेहनत मुशक्क़त करने के बाद, अपने पेशेंट्स को विजिट करने के बाद अब वो क्या सेटिस्फाइड है, शी इज़ सेटिस्फाइड। लेकिन टॉकी का एंटोनिम जो है हमें कंट्रास्ट चाहिए, टॉकी का एंटोनिम जो है वो या उसका कंट्रास्ट सेटिस्फाइड नहीं होता, अनॉयड नहीं होता, हैप्पी नहीं होता, विड्रॉन होगा। विड्रॉन मीन खामोश हो जाना, टैसीटर्न हो जाना, बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर लेना। विड्रॉन से मुराद क्या है, मैं यहाँ लिखता हूँ टैसीटर्न, यानी खामोश हो जाना। तो बेस्ट ऑप्शन क्या होगी, विड्रॉन। हैप्पी एंटोनिम नहीं बनेगा और सेटिस्फाइड भी टॉकी का एंटोनिम या अगेंस्ट नहीं बनेगा। इज इट ओके? अब चलते हैं इससे एक और जो है पॉइंट की तरफ, एक्सक्लूडिंग द ऑप्शंस में। एक्सक्लूडिंग द ऑप्शंस में हम देखते हैं
एक MCQ, the blank room had not been used over many years. Options are here: wide, empty, decorated, small. Four options are here, and alpha option is wide, beta is empty, Charlie is decorated, and delta is small. Again, logic is to be applied over here. What room had not been used? Which kind of room had not been used over many years? डेफिनेटली वाइड रूम जो है वो हर किसी की ख्वाहिश होगी कि वो यूज़ कर ले, इसलिए ये खाली नहीं रह सकता. एम्प्टी इज़ मोस्ट प्रोबेबली द राइट ऑप्शन, इट कुड बी, लेकिन अभी बाकी ऑप्शन को देखेंगे. डेकोरेटेड रूम भी कोई नहीं छोड़ेगा, वो भी फ़ौरन यूज़ कर लिया जाएगा. स्मॉल रूम हैड नॉट बीन यूज्ड ओवर मैनी, ये स्मॉल रूम भी यूज़ होता है क्योंकि छोटा सा रूम है, इसमें कोई थोड़ी बहुत चीज़ें रख देते हैं. ठीक है. एम्प्टी रूम लॉजिकली काफ़ी देर से यूज़ नहीं हुआ, इसलिए बेस्ट ऑप्शन क्या होगी? एम्प्टी. एम्प्टी इज़ द बेस्ट ऑप्शन. ओके. नाउ वी विल गो फॉर आई कैचर. आई कैचर में कोई ऐसा वर्ड किसी स्टेटमेंट में होता है जो अपेरेंटली लगता है कि ये ऑप्शन जो है वो बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन वो ऑप्शन आपको धोखा देती है, वो आई कैचर होती है. जैसे सैमुअल टेलर कॉलरिज पोइट का नेम है. सैमुअल टेलर कॉलरिज wrote 500 books in less than 50 years. That's why he is considered a blank poet of the day. बहुत काबिल पोइट समझे जाते हैं. ठीक है. और इसके लिए चार ऑप्शन लेते हैं. फनी, prolific, romantic, old. Options are here: alpha, beta, Charlie and delta. Samuel L. Coleridge wrote 500 books in less than 50 years. ये उसकी greatness है. That's why he is considered a blank poet of the day. Blank poet of the day, a funny poet of the day. ये तो कोई compatibility नहीं है, ये harmony नहीं है. इतनी great personality और funny poet consider किया जाए, इसलिए इसको तो आप reject करेंगे अल्फा ऑप्शन को. फिर प्रोलिफिक मीन्स व्हाट, इसको डिस्कस करते हैं. रोमांटिक पोइट ऑफ द डे. रोमांटिक पोइट हो तो इतनी ज़्यादा किताबें लिखे, मुमकिन नहीं. रोमांटिक पोइट तो बढ़िया 2 4 5 लिख के तो बेचारा उसी में खोया रहेगा, इसलिए ये भी लॉजिकली ठीक नहीं है. ओल्ड पोइट ऑफ द डे, ये क्या बिल्कुल इलॉजिकल है. दैट्स वाई वी विल गो फॉर बीटा ऑप्शन, प्रोलिफिक. प्रोलिफिक मीन्स rich in thought, the poet that is very intelligent, a person who has wonderful approach regarding different
लाइफ स्टाइल्स रिगार्डिंग डिफरेंट अप्रोचेज ऑफ लाइफ, उसको प्रोलिफिक बोएंगे। उसके पास बहुत नॉलेज है, इसलिए उसने थोड़े टाइम में ज़्यादा काम किया। दैट्स वाई वील go for beta option. In this way, my dear student, we have discussed a little bit about some of the important points of sentence completion, because this is very perplexing and confusing type of MCQ to you, in which you have been given some statements along with the 4 possible option, and you people have to select the best option by having proper understanding of all these techniques. Okay, let's discuss it in detail in our detailed lectures. तब तक के लिए आपके लिए अल्लाह हाफिज़ और खुश रहें, कामयाब रहें।